सोनाक्षी ये हुआ था अबाउट टास्क अप्रोच एंड ऑल? नहीं हुआ है जानवी इन योर केस? अच्छा, किरण डिड दैट। नहीं हुआ नंदा, ठीक है, देख लो जस्ट, क्योंकि ये जरूरी है। और कल से लाइक राइट नाउ आई डू नॉट हैव एन एक्सेस टू द मटेरियल्स दैट आई हैव मेड। 10 बजे के बाद हो सकता है मिल जाए, सो फार वी विल डू दिस। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टास्क रेस्पॉन्स, जिसको टीआर भी बोला जाता है, और टास्क अचीवमेंट इन टास्क टू ऐसे कि हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज task approach, task response. They refer how well you answer the question, including do you write enough words or not. ठीक है, ये आपका task approach होता है. Do you stick to the topic in the question? I have discussed this. And do you cover all parts of the question? Yes, this is also important. अगर उसमें क्वेश्चन है कि discuss both the views and give your opinion, तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हुए क्वेश्चंस के? नो, that is a like a part of the essay, but the main जो parts की जो हम बात कर रहे हैं, it will have a 3 parts. Both the views, discuss both the views. So view A, view B and your opinion. These 3 things needs to cover. तो suppose आपने A और B दे दिया, but you are not giving your opinion on this, तो आपके सिर्फ 2 ही पार्ट कवर हुए हैं. So your task approach or response will be failed. ठीक है. And do you answer the question in the way it is being asked? Like agree disagree है तो वैसे ही आपको आंसर करना है, ठीक है. This is the things. Now steps to achieve TA. Read and understand the question and question type carefully. Okay, it is very important because most of the mistake happens at this point only, that we do not understand the question properly and hence we miss. Actually that is the from here only we start using, we start giving the wrong ideas and all things. तो ये बहुत important है. एनालाइज द नंबर ऑफ पार्ट्स. तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर देखो कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं. तो नंबर ऑफ पार्ट्स का क्या यूसेज है? नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं उसमें क्या है बेसिकली, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स, तो जितने पार्ट्स हैं, सपोज वी हैव अ 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स के लिए आपको आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करनी है. ओके, सो पार्ट 1 लाइक डिस्कस बोथ द व्यूज है, तो व्यू ए, तो आपको व्यू ए के लिए आपको टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लिखना है. डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, या मेन आर्ग्यूमेंट एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट? यू नो अबाउट दिस? थोड़ा थोड़ा पता है सोनाक्षी? हाँ. सो आपको देखना है, अगर 3 पार्ट है तो तीनों के लिए टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट एंड इनफैक्ट द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आल्सो, ये तीनों आपको बता करना है. प्लान द पैराग्राफ्स. यस, आपको प्लान करना है, लाइक मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है, सेकंड में मुझे ये लिखना है, थर्ड, ये सब प्लानिंग का प्रोसेस है. और ब्रेन स्टॉर्म द आइडियाज अकॉर्डिंगली. और फर्स्ट पैराग्राफ जो ये लिखने वाली हूँ, तो लाइक ब्रेन स्टॉर्म एंड प्लानिंग ऑफ द पैराग्राफ कैन हेल्प इंटरचेंजेबली. ठीक है, लेट्स गो फास्ट. These are the type of the questions being asked. Opinion ऐसे question, discussion ऐसे question, solution ऐसे question, direct question, है ना, advantages disadvantages. Opinion में again agree disagree, to what extent do you agree. uh, discussion ऐसे में discuss both the views. Solution ऐसे question में that what are the ways we can solve the traffic problem, ऐसा आ गया सीधा. So that is the solution. Direct question में भी ऐसे ही आता है कि what do you think about this and this, and advantage disadvantage हमको सब पता है, so need not to waste lot of time. Example, opinion question, prevention. Yeah, someone can please read this. Prevention is better than cure researching. हाँ. Treating diseases is too costly, so it will be better to invest in preventive measures. Do you agree or disagree? ठीक है, question is do you agree or disagree. Question is prevention is better than cure, researching and treating diseases is too costly. Okay, so it would be better to invest in preventive measures. तो यहाँ पर आपकी आप कैसे साइड लोगे, पोजीशंस कैसे लोगे आप इसमें? So I will just यू अग्री विद द स्टेटमेंट, और डिसअग्री करेंगे तो एंड डिसअग्री भी yes, कर सकते हैं. तो डिसअग्री के केस में रिसर्चिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इज टू कॉस्टली, सो इट वुड बी बेटर टू इन्वेस्ट इन प्रिवेंटिव मेजर्स. सो व्हेन वी अग्री वी कुड से यस, treating any kind of a disease is way too costly rather than preventing it. अब इसमें आइडियाज आप बहुत सारे दे सकते हो, लाइक अ 10 rupee mask can save us from a communicable diseases, airborne diseases. While if we start, while if we do not apply the preventive approach, then some may land up in the hospitals, which may cost them much more.
तो ये उसका वो है, अग्री डिसअग्री, ठीक है। एग्जाम्पल 2, या सोनाक्षी प्लीज रीड। With the increased demand in global oils and gas, discovered areas of the world अनडिस्कवर्ड। undiscovered area of the world should be opened up to access more resources. To हम्म। what extent do you act? हाँ। हम्म। अब आ रहा है पेन, कुछ नहीं हो रहा। Anyways, with the increased demand in the global oil and gas, undiscovered areas of the world should be opened up to access more resources. To what extent do you agree? इसका position लिया जाता है that to a larger extent. I agree, and to a larger extent I disagree. ठीक है? Like with the increased demand in global oil and gas, undiscovered area of the world should be opened up to access more resources. I would have been in your place. अगर exam देता तो मैं लिखता to a larger extent I disagree, because our country, our earth is reeling up with the global warming because of the emissions of such kind of gases only by the burning, by its burning. So I largely disagree with this. लेकिन जब मैं largely disagree कर रहा हूँ, so there would be certain point जहाँ पर मैं बोलूँगा exceptions हैं उसके, ठीक है। ये वी विल सॉल्व व्हेन वंस वी विल सॉल्व, तो ये और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम इसकी पोजीशंस कैसे लेते हैं। बट राइट नाउ आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड। सो इसकी जो अप्रो इसमें जो आप पैराग्राफ्स बनाएंगे इट विल बी डिफरेंट। यहाँ जो आप करोगे ये थोड़ा सा अलग बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आई अग्री, बस आई अग्री लिख दिए आपने और सिर्फ अग्री 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 के आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा इसमें। जबकि आप कर सकते हो, हालांकि इसमें भी एक कंसेशन स्टेटमेंट आता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि how we do that. Now discussion essay question. Some people think that environmental problems should be solved on a global scale, while others believe that it is better to deal. Discuss both the sides and give your opinion. You know about this, huh? वैसे ये जानवी, can you read this please? Example 2. Yes, sir. Some people think that getting degree from university is the best way to hmm get a good job further to me. hmm So हाँ हाँ okay it would be better to go straight into work and get experience instead. Discuss both the sides and give your opinion. So इसमें तीन बनेंगे. okay Was mm-hmm so दो views है. yeah फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ बनेंगे. yes थर्ड उसका हम अपना ओपिनियन. ओपिनियन देंगे, करेक्ट है। ये है, बट कैसे करेंगे, क्या है, लिखेंगे कैसे, ये सब आगे पढ़ेंगे अपन। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन वन, यस। In many developing countries, there is a problem with declining quality of air and water from both industry and construction. What measures could be taken to prevent this? ओके नाइन, अब इसमें कितने पार्ट है, टेल मी इन दिस क्वेश्चन। सर इसमें दो सारी प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? एनीवन? So three parts. In many developing countries, there is a problem with declining quality of air and water from both industry and constructions. What measures could be taken to prevent this? Yeah, Janvi, what do you say? I think the solution as Uh, first we first idea we talk about the problem. And second we talk about solution. in many developing countries, there is a problem with declining quality of air and water from both industry and constructions. What measures could be taken? So, yeah, problem is there, but the writer has already told that yes, there is a problem. सिर्फ सॉल्यूशन की बात करना है, सो वन पार्ट। अब याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर पार्ट सिर्फ एक ही है इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर ओनली गोइंग टू राइट वन पैराग्राफ, ओके। You have to brainstorm the ideas for only one particular topic, but here because we have to write 3 paragraph, तो इसके 3 आपको मेन आर्गुमेंट्स देना होगा, the 3 major ways to prevent, ओके। तो उस तरीके से आपको ध्यान देना है। देखो, even we could start discussing the problem first in the first paragraph, that where is the problem, and in the next 2 paragraph we can discuss the preventions, the solution way। but क्या होता है उस केस में, थोड़ी सी हमारा जो वो है, लाइक वी कुड से दैट वी नीड टू अप्लाई मोर ब्रेन, की यार उसी इसी चीजों को हम और कैसे बेटर तरीके से बताएं। इफ यू कैन डू दिस दैट्स फाइन, बट बेस्ट इज लाइक दिस, दैट फर्स्टली
ये सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर सेकंड पैराग्राफ में सेकेंडली, और लास्टली आई थिंक दिस आर द वेज. सो 3 मेजर वेज ऑफ प्रिवेंशन आप फाइंड आउट करो and then you write it in your paragraph. That makes the things very simple because already author जो है या फिर the examiner, they know that this is the problem happening. तो उस problem को बहुत ज़्यादा explain करना doesn't meet the things. Suppose आपने newspaper में you are reading an article. अब आर्टिकल लिखे और रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शंस का उसमें एनालिसिस है. सो अब उस इलेक्शन पे हो सकता है जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना, इन द इंट्रोडक्शन एरिया, there only they will discuss that this was the result, like there was a heavy defeat of the Congress while the BJP won in a very with a very thumping majority. ठीक है, ये चीजें हैं. अब उसी and let us analyze that what would be the reason behind the Congress massive defeat and the BJP's great victory. That अगर वो उसका इंटेंशन है एनालिसिस करना इलेक्शन रिजल्ट का, तो अगर वो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन वो डेटा देने लगे कि कांग्रेस गॉट दिस मैनी सीट्स, बीजेपी गॉट दिस मैनी सीट्स, तो वो रिपीटेशन ऑफ द आइडियाज हो जाएगा. हाँ, वो उस डेटा से वो कुछ एनालिसिस कर रहा है उस पैराग्राफ में, देन दैट इज अ डिफरेंट केस. If you see the data, there was a around 3/4 seat BJP has won. Okay, so it signifies that most of the area, या फिर बोल सकते हैं that in the Vidarbha area, BJP has won these many seats. That means most of the voters from the Vidarbha has voted for the BJP, which used to be the stronghold of the Congress earlier. This means that Congress has lost lost ground from the Vidarbha as well as other regions. तो ये यहाँ पर उस डेटा का मीनिंग हो रहा है बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन. बट वो तो चीज हम जानते हैं दैट कांग्रेस हैज बीन डिफीटेड, बीजेपी वन द इलेक्शन. तो वहां पर उसको बार बार बॉडी पैराग्राफ में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, सो हियर वी हैव ओनली वन पार्ट. ठीक, इन द सेम वे, या प्लीज समवन. Overcome memory. Second, what is a major problem? What are the causes of this? How can its problem be solved? Now how many parts here we have? Two parts, yeah, because we have a two question. What are the causes of this and how can this problem be solved? So you can devote two paragraph for the causes. Firstly, this is the reason. Secondly, this is the reason. And third paragraph, you can talk about the solution. Simple है. ओके, तो जब आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे चीजों का, तो इसी हिसाब से आप इसको ब्रेन स्टॉर्म करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. यस. News is an important part of most people's lives. Why is news so important to people? Why is so much news dedicated to bad news? Should the news focus on good news instead? So number of parts, Two. Sonakshi, yeah, Janvi. Three parts. Three questions, three parts. Very simple, yeah. Why is news? Why is news? So in the first paragraph, you need to tell why is news so important to people in the and this becomes very easy. बहुत ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है. इसमें आपको एक टॉपिक मिला. अच्छा, पहले मैं बताऊंगी why is news so important to people. तो इसको स्टार्ट करना important रहेगा. News is important to the people for in several ways. Firstly, it keeps us updated. Second, it awares the people so that in the future elections they can make an aware aware choices या votes or like this. And lastly, कुछ भी आप बोल सकते हो, whatever you have planned. ठीक है. Why so much news dedicated to bad news? तो अब देखो, आप वहां पर किए, अब आपने न्यूज के फायदे बताए, तो अब सेकंड में न्यूज का डिसएडवांटेज बता रहे हो. एक प्रकार से देखो, यहाँ पर बता रहे हो न्यूज इज सो इंपॉर्टेंट टू पीपल, फायदा बता रहे हो. सेकंड में आपको बताना है व्हाई इज न्यूज डेडिकेटेड टू बैड न्यूज. तो अब एक प्रकार से डिसएडवांटेज है. तो सेकंड पैराग्राफ जो आपका शुरू होगा वो ऑन द कॉन्ट्रेरी या हाउएवर से शुरू होगा, क्योंकि आप अपने आइडिया को चेंज कर रहे हो. तो ये लिंकर है, यही कोहेशन एंड कोहेसिवनेस है. जैसे ही आपके रीडर हाउएवर वर्ड पढ़ेगा, उसको पता चलेगा ओके नाउ यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड एन ऑपोजिट आइडिया व्हाट एवर यू हैव गिवन. तो अभी तक आपने न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है बताया. हाउएवर in this commercial world, this news things has been highly commercialized and it highly depends upon the number of people watching to the news. It is psychologically proven that people are more attracted towards the bad news or the negative news. Hence, the news broadcasters are more lean toward highlighting the bad news, not news. News in itself is a plural. Okay, this.
तो उसके कुछ रीजंस बता सकते हो, और एडिशनली दिस बिकॉज ये जो बैड न्यूज वगैरह जो हो रहे हैं, so it will the part of your solution whatever. And last, should the news focus on good news instead? ओके, तो लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको रहना वो बताना है। तो उसमें आप क्या बोल सकते हो कि हैविंग सेड दैट। अब देखो, हैविंग सेड दैट से स्टार्ट करोगे, इसका ये मतलब है कि देखो अभी पिछले पैराग्राफ में आपने बैड न्यूज के बारे में बहुत बात किया, विच इज प्रॉफिटेबल, कमर्शियली प्रॉफिटेबल फॉर द न्यूज कंपनीज। ओके, लेकिन आप बोलोगे हाँ, हालांकि मैंने ये बोल दिया कि वो प्रॉफिटेबल है, हैविंग सेड दैट lots of bad news are very bad for, yeah, challenging for the mental peace of the people and for the society also, because we always used to think, or a general impression gets that the everything there is always a negative thing happening around, but this is not the case. The bad news are just 1% of the entire thing happening in a day. So once we start focusing toward the good news also, we our society will evolve as a better like our society can evolve much better. इस तरीके से आपको चीजों को लिखना है। while I say, तो आइडियाज आते रहते हैं, बट when we write वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं वैसा लिखूंगा भी नहीं, बट मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये अपने आइडिया दिमाग में बना रहा हूँ। अब ये जो चीज आइडियाज आ गई है, सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द राइटिंग इज गेटिंग आइडिया। कंटेंट जरूरी है। आप कितने भी अच्छे राइटर हो, सपोज बहुत अच्छे राइटर हो, और मैं बोल दूंगा कि वो जो टॉल्स्टॉय या फिर जो बड़े बड़े रस्किन बॉन्ड और ये सब पोएट है, उसके रिसर्च, उसके बारे, उसकी फिलॉसफी को बताओ, सो इवन आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता रहे तो ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव एन एबिलिटी टू थिंक, और एबिलिटी टू थिंक, आइडिया जनरेट करने की भी आइडियाज होती हैं, दैट हाउ वी कैन डू नो अबाउट पेस्टल, PESTHEL? नहीं, ये कीवर्ड है जिससे आप किसी भी कोई भी कंटेंट के आइडिया जनरेट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर, जब हम ब्रेन स्टॉर्म चैप्टर में पहुंचेंगे ना, आई विल टेल यू अबाउट दैट। उससे आप किसी भी टॉपिक का, है ना, एक तो बड़ा सिंपल है, वाई वैन, 3 Ws ले लो, वाई वैन वेयर, और एक H ले लो, हाउ। ठीक है, वाई से ही और हाउ से ही बहुत कुछ जनरेट हो जाता है। एनीवेज, यहाँ पर आ जाओ। मैनी पीपल अग्री दैट मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, वाई इज हैप्पीनेस डिफिकल्ट टू डिफाइन, हाउ कैन पीपल अचीव हैप्पीनेस? ठीक है, टू पार्ट्स वी हैव। ओके, व्हाई इज हैप्पीनेस डिफिकल्ट टू डिफाइन, हाउ कैन पीपल। अब एक चीज बताओ, 2 पार्ट्स है, वी हैव टू राइट 3 पैराग्राफ, तो कौन से पार्ट के लिए आप कितने पैराग्राफ डिवोट करोगे? Sir, how can people achieve happiness too bad? This one, no? That means you are going to devote 1 paragraph for this. Everyone agrees with this? Why? हाँ, so सर इसमें तो 2 पैराग्राफ तो किसी को भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हो, Yes, बट sir. मैं जनरली मैं पूछ रहा हूँ कि लिखोगे कैसे एग्जाम में, व्हेन यू आर इन द एग्जाम एंड सपोज Yes, sir. ये एग्जाम, Yeah. हाँ, बिकॉज इस पर हमें ज्यादा कंटेंट मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले के लिए हम ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे। ये आपको बस ध्यान देना है कि मुझे कहाँ पर कंटेंट ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, अब भाई व्हाई इज हैप्पीनेस डिफिकल्ट टू डिफाइन, इस पर हम कितना ही बात करेंगे, एक पैराग्राफ ही लिख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन इंटेंजिबल थिंग, सो वी इट इज रियली डिफिकल्ट, एंड हैप्पीनेस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मेजर्स। ओके, फॉर फॉर समवन सिटिंग क्वाइटली एट होम is happiness, while someone wants to be surrounded by the friends. So and that is the reason why it is very difficult to define the happiness. ठीक है, अब how can people achieve happiness? As far as achieving happiness is concerned, there are a lot of ways, है ना? Firstly, they should try to understand their personal nature, their personality, है ना? सेकंड हो सकता है दे कैन ऑल्सो इफ इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। अब देखो, पहला पैराग्राफ में आपने वेज बताया, सेकंड पैराग्राफ में आप सोल्यूशन बताओ, जो पर्सन हैप्पी नहीं है उसके बारे में। अ पर्सन हु इज like who is undergoing through mental depression or such kind of a distress, they may approach professional counselor. They could give you a profession, they could give them a professional advice, and accordingly they could resolve the crisis of their life. तो इस तरीके से आपको प्लान करना है, बट याद रखिएगा हर एक पैराग्राफ की एक थीम होती है। ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट अगर वो थीम अगर आपने पकड़ना सीख लिया ना, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द पैराग्राफ्स। सो दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको आइडिया मिल गया, तो सेकंड है अब आपको थीम बनाना है अपने पैराग्राफ्स के।
दैट, और उसी को बोला जाता है टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ का टेक्निकली वी कॉल एज टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इतनी ब्रेक कर दो, और इतनी ब्रेक्स करके मैं समझाऊंगा आपको राइटिंग टास्क 2 की एक एक सेंटेंस, तो आपके माइंड पर क्लियर रहेगा फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है। मीन्स स्ट्रक्चर विल बी सेम, बस आपको कंटेंट शेप करना है। वो इतना ब्रेक करके हम लिखेंगे चीजों को, इट कैन बी डन। गुड। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन है, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। सो अगेन यू नीड टू टॉक, like it is becoming increasingly popular to have a year of between finishing school and going to university. ओके, ये चीजें पॉपुलर हो रहा है, एक साल हम गैप लें। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस, तो आपको इसमें दोनों ही बताना है। अब जो चीज ज्यादा है उसको दो पैराग्राफ डिवोट करो। ठीक है, लुक व्हेन आई एम सेइंग राइट 3 पैराग्राफ डजंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज राइट 3 पैराग्राफ। आप 2 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हो, कोई 4 भी लिख सकता है, बट याद रखना आपके पास टाइम है 40 मिनट्स। तो 4 पैराग्राफ लिखने जाओगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 बॉडी पैराग्राफ। हाँ, उसके ऊपर नीचे, ऊपर में इंट्रोडक्शन है, नीचे कंक्लूजन है। व्हेन आई से पैराग्राफ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी पैराग्राफ। ओके, अब आप दो, कोई मैंडेट नहीं है कि आप यू गो फॉर द 3 पैराग्राफ ओनली, यू कैन ऑल्सो गो विद द 2 पैराग्राफ्स। बट व्हाट यू नीड टू माइंड, कीप इन अ माइंड दैट आपके जो 250 प्लस वर्ड्स लिमिट है वो होने चाहिए, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्हाट आई हैव सीन कि अगर आप 3 पैराग्राफ लिखते हो जिसमें एक पैराग्राफ थोड़ा छोटा भी है ना, तो यू इजिली अचीव योर दिस 250 वर्ड्स गोल। ठीक है, यस। बट अगर आपको लगता है कि यार 2 पैराग्राफ से भी मैं अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू कैन गो विद द 2 पैराग्राफ एटलीस्ट विद दोज क्वेश्चन वेयर वी हैव ओनली 2 पार्ट्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप एडवांटेज बता दो, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिसएडवांटेज बता दो। ठीक है, जानवी नींद आने लगा। हम्म, So it is very good. ये एक और इश्यूज है, हाँ, लेट सोना। आई डोंट नो व्हाई वेयर वी स्पेंड आवर टाइम, या तो लेट सो रहे हो ना, तो पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करो उस समय को। सर कल जाती होती 9 बज गए थे, ट्रेन में सो गई थी। दैट्स कूल ना। आपको तो मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, लाइक during 2013 or 14 I used to travel same, like from Raipur to Bhilai I was traveling on that by train only. So but that used to be my the best time. सबसे बड़ी बात तो वहाँ नेटवर्किंग होती है बड़ी, ट्रेन में ना लोग रिपीटेडली मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज है। स्टिल आई हैव फ्यू कॉन्टेक्ट्स जो मैं उनसे ट्रेन में मिला था, वो आज भी मैं उनसे टच में हूँ। ठीक है, तो एक तो वो लोगों से सोशल होना जो मिलता है ना, दैट इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड, you have a lot of spare time to invest on. So when I say that listen to audios, English audios, या read certain books or papers or like this, कितना फोकस समय मिलता है वहां पर। बट इफ, हाँ बोलो। मैं तो ट्रेन में आके सर वहाँ खड़े होने की जगह नहीं भाई तो मोबाइल में हेडफोन लगाने की तो जगह है। आती। डर लगता है सर, कोई ना मतलब फोन मत ऐसे टच करके मत ले जाए। वो तो पॉकेट में रहेगा ना अंदर। अच्छा, सब सब ब्लूटूथ यूज करते हो क्या? एटलीस्ट यू कैन गो विद द ऑडियोज, नो, यू कैन लिसन टू द ऑडियो। वर्ड्स पढ़ती रहती हूँ खड़े भाई खड़े। देखो, वी नीड टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल, जहां जो चीजें होगा वो करो ना। अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है। ठीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वैसे वो भी अच्छा है, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मतलब वो भी एक समय मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने का, लाइफ में बहुत कुछ सोचना, क्लैरिटी आती है, वो भी एक अच्छी चीज है। बट वेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वी शुड ऑलवेज बी इन अ प्रिपरेशन मोड, प्रैक्टिस मोड में रहना चाहिए। just try to listen, get familiar. The देखो, we there are 4 modules for the languages, and that we use language in 4 ways: we listen, we read, we write, and we speak. ठीक है, so listening and reading is the input part of the language, उससे हमें information मिलता है ना। रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग इज द आउटपुट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो एक बच्चा जो है, घर का छोटा सा बच्चा है, वो क्या पहले करता है, वो इनपुट पहले कर रहा है कि आउटपुट करता है? जब एकदम पैदा हुआ है और धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है, इनपुट जो पेरेंट्स अराउंड जो है वो बार बार सुन रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई अ किड बोर्न टू अ मलयालम फैमिली विल स्टार्ट स्पीकिंग मलयालम फर्स्ट। ठीक है, बंगाली में बंगाली फर्स्ट वो सीखेगा, दैट इज द रीजन। तो जो इनपुट आपके दिमाग में जा रहा है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट एज एन आउटपुट। सो आपको अपनी इनपुट सुधारनी है। हाँ बोलिए। कल से कल से? अभी तक क्यों नहीं हो रहा था, दैट आई वाज वंडरिंग। और आज नहीं करोगे? हाँ, तो आज से होता है ना, कल ऑलवेज रिमेन कल। सो
मेरा मेरा हमेशा मानना है दिस IELTS में इफ यू डिवोट 3 मंथ्स कंप्लीट, मतलब 8 to 9 आवर्स भी आप लीव IELTS में बोलता हूँ मैं ऑलवेज, मतलब आपका क्लास के अलावा भी आपको हमेशा IELTS प्रैक्टिस जोन पे रहें. In this 3 months, if you devote it completely, it will take you to the next level. Next level doesn't mean कि आप एग्जाम पास कर जाओगे. मैं तो एग्जाम आप लोग को 1 महीने में भी पास करवा दूं जो नंबर्स आप लोग को आने हैं. माई आइडिया इज लाइक दिस कि ऐसा चीजें चेंज हो इन योर कम्युनिकेशन इन स्किल एंड हैंडलिंग द इंग्लिश लैंग्वेज that it remains with you for the lifelong. That is the thing that I want to bring change. That's why I always say that if possible, give 2 to 3 months for the IELTS practice, because then only there will be certain kind of a habitual change and the change of perceptions to how you look to this language. और वो एक आइडियाज डेवलप होंगी और वहां से किक स्टार्ट होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ दैट स्टार्ट लिसनिंग टू द टेड टॉक्स होते हैं या पॉडकास्ट. Nowadays we have a lot of podcasts. When I started taking this IELTS test, we were only having TED talks, one-way conversation. One-way conversation is basically boring also, and at the same time we do not have like a very and TED talks are quite formal also. But when we listen to podcast, so podcast is kind of an informal, and that is what we require for this speaking. Okay, so listen to the podcast. First, start with the Indian English podcast, and gradually shift yourself to the like foreigners one, like someone who going from US. But then understand the topic shall interest you. You just, if you are interested in you play sports, isn't that? So there are a lot of sports podcasts. Okay, so you can go with this sports podcast. Just search and try to listen it as much as possible. फायदे क्या होंगे? Once you become comfortable with those English podcasts, so you will start listening to those things and you will learn new things also in parallel. सिर्फ लैंग्वेज ही लर्न नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नॉलेज आ रहा है, आइडियाज आ रहे, ओपिनियन बन रही है, वो भी आपके लाइफ को शेप करने का काम करेगा. Okay, so look this IELTS preparation in a holistic way rather than just clearing the exam. Look, clearing the exam is not at all difficult if you follow proper strategy and if you follow the proper practice regime. Discipline जरूरी है भाई. And देखो, there are two things. One is excuse, second is like intention, commitment to do something. ठीक है? In our life, if we start giving priority to the excuse, that is never going to stop. But when we are like committed to something, यार करना है तो करना है, that means तब वहां पर excuse. और it's all about ना, ये एक हमारा वो भी है, it's all about habit. हमेशा हम किस चीज को वो करते हैं, लाइक किस चीज को हम पावर देते हैं. इफ यू स्टार्ट गिविंग पावर टू आवर एक्सक्यूजेस ना, तो हमेशा पावर विल ओवर पावर द आवर डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट्स. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो इस चीजों को ध्यान देना है आप लोग को. Fine. And this one, like some people think that it would be better for large companies and industry to move to regional areas outside large. So do you think advantages? So this and this is bit different. है ना? यहाँ पर देखो, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवेज द डिसएडवांटेजेस. दैट मीन्स आपको एडवांटेजेस के ही बारे में बात करनी है पहले, बट आपको बोलना है कि हाउएवर हैविंग सेड दैट इफ समथिंग हैज दिस मेनी एडवांटेजेस, it also comes with so many disadvantages that it cannot be easily overlooked. For an example, online classes of the kids that was going on during the COVID time. If I start argue that during the COVID time when our kids can learn through online, what is the like what is the problem we if we continue this online habit rather than sending them to the schools and spending so many productive hours. So आप बोल सकते हो, yes, this was an advantage position where the when the schools were closed because of this restrictions, it was really bringing and it has also brought a lot of technological changes, technological advancement. However, having said that, there were the disadvantages are so much that it cannot be easily overlooked, and we need to sincerely think about this. तो अब disadvantages बताओ. Like students were more prone to the screen. Apart from studying, they were playing, getting addicted with the games and other kind of a things. So they were getting less physical activities and all. तो वो है. So in that way, looking to the disadvantages, I think that in conclusion, looking to all the arguments, I think that actually disadvantages overweighs the advantages. इस तरीके से आपको conclude करना है. ठीक है? So this is something else. Fine.
So I think आज इतना ही रखेंगे. Tomorrow I will start with the actual practice question. First we will do the brainstorm. हम brainstorm सीखेंगे and then we will go with the intro. How we are going to write the intro, how we are going to write the paragraphs and all. So I think 6 to 7 classes it will take, but by the time I personally feel कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी. So far any questions कुछ भी है mind पर? कुछ भी नहीं है? Okay, cool. What else? Break चाहिए? It's 10:14. I will